یرمیہ کی کتاب اس کا باب نمبر 23 اور آیت نمبر 29, 30, 31 اور 32 4 آیات میں آپ کے سامنے پڑھوں گی. سب دھیان سے ان آیات کو سنیے گا. خدا کے کلام میں میرے عزیزوں یرمیہ نبی یوں فرماتے ہیں, کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں ہے؟ خداوند فرماتا ہے, اور ہتھوڑے کے مانند جو چٹان کو چکنا چور کر ڈالتا ہے. اس لیے دیکھ میں ان نبیوں کا مخالف ہوں. خداوند فرماتا ہے, جو ایک دوسرے سے میری باتیں چراتے ہیں. دیکھ میں ان نبیوں کا مخالف ہوں. خداوند فرماتا ہے, جو اپنی زبان کو استعمال کرتے اور کہتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے. خداوند فرماتا ہے, دیکھ میں ان کا مخالف ہوں, جو جھوٹے خوابوں کو نبوت کہتے ہیں اور بیان کرتے ہیں اور اپنی جھوٹی باتوں سے اور لافزنی سے میرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. لیکن میں نے نہ ان کو بھیجا نہ حکم دیا, اس لیے ان لوگوں کو ان سے ہرگز فائدہ نہ ہوگا. خداوند فرماتا ہے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھیں اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکتوں سب بولو آمین. سب کے ایک خداوند آج کا کلام میری زندگی میں جائے اور 100 کا 100 گنا پھل لے کر آئے. اے خداوند, آج ہم یہاں پہ آئے نہیں بلکہ لائے گئے ہیں. تیرے پاک فرشتے ہمیں لے کر آئے ہیں, تیرا پاک روح ہمیں لے کر آیا ہے تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھیں, سیکھیں اور تیرے کلام کے وسیلہ سے ہم برکت پائیں, ہم چھڑائے جائیں. اے خداوند, ہم اس کلام سے پیار کرتے ہیں. یہ ہمارے برکت پانے کی وجہ ہے, یہ شیطان کو شرمندہ کرنے کی وجہ ہے, یہ ہمارے پاک اور صاف رہنے کی وجہ ہے. اے خداوند, آج کا کلام میری زندگی میں جائے اور 100 کا 100 گنا پھل لے کر آئے. اے خداوند, میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ آج میں زندہ خداوند کی زندہ حضوری میں ہوں, اور میرا ایمان ہے تیری زندہ حضوری میں آنے کے بعد میں سیم واپس نہیں جاؤں گا, میں گواہی کے ساتھ واپس آؤں گا. خداوند, میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ آج میں تیری زندہ حضوری میں بیٹھا ہوں. پاک خداوند خدا, آج کا کلام میری زندگی میں جائے اور 100 کا 100 گنا پھل لے کر آئے, مسیح کے نام میں آمین. ہلیلویا. آج ہم نے خدا کے بخش کلام میں سے چند ورسز جو ہیں وہ تلاوت کی کہ خدا کا کلام یوں کہہ رہا ہے, کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں ہے؟ خداوند فرماتا ہے, اور ہتھوڑے کی مانند جو چٹان کو چکنا چور کر ڈالتا ہے. اس لیے دیکھ میں ان نبیوں کا مخالف ہوں. خداوند فرماتا ہے, جو ایک دوسرے سے میری باتیں چراتے ہیں. دیکھ میں ان نبیوں کا مخالف ہوں. خداوند فرماتا ہے, جو اپنی زبان کا استعمال کرتے اور کہتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے. خداوند فرماتا ہے, دیکھ میں ان کا مخالف ہوں, جو جھوٹی خوابوں کو نبوت کہتے اور بیان کرتے ہیں اور اپنی جھوٹی باتوں سے اور لافزنی سے میرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. لیکن میں نے نہ ان کو بھیجا نہ حکم دیا, اس لیے ان لوگوں کو ان سے ہرگز فائدہ نہ ہوگا. کون فرماتا ہے؟ خداوند فرماتا ہے. سب بولو آمین. آج خدا کا کلام ہمیں کہہ رہا ہے, کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں؟ خداوند فرماتا ہے, اور ہتھوڑے کی مانند جو چٹان کو کیا کرتا ہے؟ چکنا چور کر دیتا ہے. خداوند کا کلام کیا ہے؟ وہ آگ کی مانند ہے. قرآن مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ نے خداوند سے کہا کہ خداوند, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, میں فیس ٹو فیس تیرے سامنے آنا چاہتا ہوں. تو خداوند نے کہا کہ موسیٰ, تو مجھے دیکھ نہیں سکتا, کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا. اگر وہ مجھے دیکھے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا. ہاں, میں تیرے سامنے سے گزروں گا, تیرے اوپر اپنے آپ کو ظاہر کروں گا, لیکن تو مجھے کچھ دیکھے گا, لیکن میں جب گزر جاؤں گا تو تو مجھے محسوس کرے گا اور بیک سے مجھے دیکھے گا. ہلیلویا. قرآن مقدس میں کہا خداوند وہاں سے گزرے اور خداوند کو موسیٰ نے محسوس کیا, موسیٰ نے دیکھا, اور اسی لیے وہ زندہ خداوند خدا جو ہے وہ مجسم ہو کر کیوں زمین کے اوپر آیا؟ انسان کا روپ لے کر وہ کلام جو ہے وہ مجسم ہو کر کیوں زمین کے اوپر آیا؟ کیونکہ اس نے خود کہا تھا کہ انسان جو ہے وہ مجھے دیکھ نہیں سکتا. اگر خداوند آج زمین کے اوپر آ جائے تو اپنے کلام کے مطابق اپنے کلام مقدس کے مطابق جو ہے کوئی بھی انسان جو ہے وہ خداوند کو دیکھ نہیں سکتا. ایون کہ خداوند کی ڈائریکٹ آواز جو ہے وہ انسان جو ہے اسے برداشت بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کا کلام کہہ رہا ہے کہ کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں ہے؟ اور مقدس کہتی ہے کہ کلام مجسم ہوا اور وہ زمین کے اوپر رہا.
और लोगों ने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा एक लोटे का, क्योंकि उसका कलाम क्या है, वो एक आग है। और मूसा को खुदावंद ने क्या कहा था कि तू मुझे देख नहीं सकता। और जब मूसा ने फर्स्ट टाइम खुदावंद की आवाज को सुना, उसने क्या देखा था, उसने आग को देखा था। मैं आपको बता रहा हूं कि वो खुदा इसलिए इंसान का रूप लेकर जमीन के ऊपर आया क्योंकि इस बात को जानते थे, उसके मुंह का कलाम था, क्योंकि उसने खुद कहा था कि कोई भी इंसान मुझे देख नहीं सकता। और खुदा ने कहा कि अगर मैं इस तरह से जमीन पे जाऊंगा तो लोग मुझे देख नहीं सकेंगे, अगर देखेंगे तो बहुत से लोग जो है वो क्या हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। इसीलिए खुदावंद ने एक पैटर्न बनाया, खुदावंद ने एक तरीका निकाला कि हाँ मैं खुद इंसान का रूप लेकर लोगों में जाऊंगा और उन्हें उनका लाइफ स्टाइल जो है वो किस तरह का होना चाहिए, उन्हें मैं सब कुछ सिखाकर मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हो जाऊंगा, मैं जिंदा होके फिर 40 दिन लोगों को सिखा के फिर आसमान के ऊपर जिंदा जाके फिर से अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ जाऊंगा। हालेलुया। और वो खुदा का कलाम आज कह रहा है कि मेरा कलाम आग की मानद नहीं है। खुदा फरमाता है थोड़े की मानद जो चट्टान को चकनाचूर कर देता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको अपनी अंतड़ियां जो है वो खुदावंद के कलाम के साथ भरनी है। आपको अपनी जिंदगी के हर हिस्से में जो है उसके कलाम को जगह देनी है। हालेलुया। अगर उसके साथ भरी होगी, अगर आप उसका कलाम जो है अगर आपको आपकी नस नस में बसा हुआ, आपके ब्लड में, आपके डीएनए में है, तो आप कभी भी अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्से में जो है आजमाइश आ सकती है, आपको परखा जा सकता है, लेकिन आप कभी भी उसमें फेल नहीं हो सकते। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको अपनी अंतड़ियां जो है उसके कलाम के साथ भरनी है, ताकि जब शैतान जो है किसी तरह से आपको गुमराह करने के लिए, आपको परखने के लिए, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपके ध्यान को हटाने के लिए आए, तो जब आप उसके वर्ड्स को बोलो तो वो आग की मानद जो है जब उसको देखे तो शैतान जो है वो आपकी जिंदगी में से भाग जाए। हालेलुया। क्योंकि उसका कलाम जो है वो किसकी मानद है, वो आग की मानद है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप वर्ड्स के साथ, खुदावंद के कलाम के साथ आप अपने आप को भर लेते हो तो आपको नहीं पता कि आप सिर्फ अपने आप को खुदा के कलाम के साथ नहीं भर रहे होते, आप अपने आप को हर तरह की ब्लेसिंग के साथ, हर तरह की बरकतों के साथ आप अपने आप को फिल अप कर रहे होते। लेकिन इन टाइम हो सकता है उस टाइम एकदम से आपको वो नजर नहीं आता, लेकिन जब टाइम आता है तो खुदावंद का कलाम कहता है कि खुदावंद कहते हैं कि मैं अपने टाइम के ऊपर क्या करूंगा, मैं सब कुछ ज़ाहिर कर दूंगा। जब आप अपने उसके कलाम को भर लेते हैं, अपने अंदर अपने ब्लेसिंग्स को भर रहे होते हैं, तो टाइम आता है जब वो ब्लेसिंग्स आपके सामने ज़ाहिर होती हैं, जब आपकी जिंदगी में आती हैं, तो आप तो उनसे ब्लेस होते हो, आप उनसे फायदा उठाते हो, बल्कि वो ब्लेसिंग्स जो है जब दूसरे लोग देखते हैं तो वो भी इसी बात की प्रेयर्स करते हैं कि खुदावंद जैसी बरकत, जैसा फल तूने इसको दिया है, मुझे भी क्या करना, तू वैसा ही फल देना। अगर आज एक इंसान की उम्र 20 साल हो गई है, 25 साल हो गई है, 30 साल हो गई है, 35 साल हो गई है, 40 साल हो गई है, और जितनी उसकी उम्र हो गई है ना, अगर अब तक उतने लफ्ज बाइबल मुकद्दस के उसको याद नहीं है ना, उसकी जिंदगी बिल्कुल बेकार है। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर एक इंसान की उम्र 20 साल हो गई है तो उसे कम से कम बाइबल की 20 वर्सेस जो है वो याद होनी चाहिए। एक साल में क्या हम एक वर्ष भी याद नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्या एक साल में एक वर्ष याद करें तो 20 सालों में 20, और आपको नहीं पता वो 20 वर्सेस जो है वो आपके लिए आपको कहां से कहां लेकर जा सकती है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब आप उस आग को, उस फायर को, जो वो कह रहा है कि मेरा कलाम क्या है, वो आग की मानद है, बल्कि किसकी मानद है, वो थोड़े की मानद है, जो किसको चकनाचूर कर देता है, जो चट्टान को चकनाचूर कर देता है। और यीशु मसीह ने क्या कहा था कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान है तो इस पत्थर से कहोगे कि हट जा, तो ये तुम्हारे रास्ते से क्या कर जाएगा, ये तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा। लेकिन तभी ईमान में मजबूत होंगे ना जब अपने आप को खुदा के कलाम के साथ भरा होगा।
जब भरा ही नहीं होगा, जब खुदा के कलाम के साथ कोई वाकफियत ही नहीं है, जब उसको सिर्फ एज ए रवायती क्रिश्चियन होते हुए जब बस एक बाइबल मुकद्दस को अपने घर में रखा हुआ है और कभी उसे पढ़ के देखा नहीं, कभी उसे खोल के देखा नहीं, नाम के सिर्फ क्रिश्चियन है और जो हमारे अमल है वो बिल्कुल क्रिश्चियनिटी से क्या है, वो बहुत दूर है। इसी में आपको हमेशा ही एक बात रिपीट करता रहता हूं कि आपका क्रिश्चियन कहलवाना और आपका क्रिश्चियन बनना, इन दोनों में आसमान और जमीन का फर्क है। एक असल क्रिश्चियन और एक नाम का क्रिश्चियन, इन दोनों का आप खड़ा कर लीजिएगा और इनमें आसमान और जमीन का फर्क आपको नजर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें नाम के नहीं बल्कि हमें वाकई एक रियलिटी में क्रिश्चियन बनना है। और उसके कलाम को जो वो कह रहा है कि मेरा कलाम जो है वो आग की मानद है, तो अगर उसका कलाम आपकी आग की मानद है तो आपने अपनी अंतड़ियां उसके कलाम के साथ भरी होंगी। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, यिर्मयाह की किताब में हम पढ़ेंगे उस वर्सेस को। बाब नंबर 5 और उसके आयत नंबर 14 में लिखा हुआ है, यिर्मयाह की किताब उसका बाब नंबर 5 और उसकी आयत नंबर 14 में लिखा हुआ है, बस इसलिए कि तुम यूं कहते हो, खुदावंद रब्बुल फ़ाज़ यूं फरमाता है कि देख मैं अपने कलाम को तेरे मुंह में आग और उन लोगों को लकड़ी बनाऊंगा और वो उनको भस्म कर देगी। किसको? तेरे मुंह के कलाम को। जब आपने खुदावंद के कलाम के साथ अपनी अंतड़ियां बड़ी होंगी, उसका कलाम क्या है? वो आग है। तो आपको लग रहा हो कि आपके सामने जो है वो कितनी बड़ी मुश्किल है, आपके मुखालफिन, आपके दुश्मन चाहे जिस तरह की मर्जी भी है, चाहे आपका सबसे बड़ा दुश्मन जो शैतान जो है वो आपके सामने खड़ा है और वो आपको गुमराह करना चाहता है, आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, आपके ध्यान को हटाना चाहता है, तो खुदा उनका कलाम आज आपको और मुझे हम सबसे कह रहा है कि मैं तेरे कलाम को, मैं अपने कलाम को तेरे मुंह में आग और उन लोगों को लकड़ी बनाऊंगा, यानी उनको जो शैतानी काम है, जो शैतानी लोग। तो जब आपको अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करना आ जाएगा, अब आप अपनी उसकी अंतड़ियां, आप अपनी अंतड़ियां जो है उसके कलाम के साथ जब आपने भरी होगी, तो जब आप उसको निकालेंगे तो खुदा का कलाम कह रहा है कि मेरा कलाम एक तो आग है और दूसरा हथौड़े की मानद है जो चट्टान को चकनाचूर कर देता है। तो आपको कलाम, अगर किसी के पास बेबी नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूं ये बात, आपको कलाम को अपने मुंह से निकालते रहना है, क्योंकि ये कलाम किसकी मानद है? ये हथौड़े की मानद है और ये आग की मानद है। कि खुदावंद खुदा तेरे कलाम में लिखा हुआ है कि तू तन्हा को खानदान बख्शता है। खुदावंद तेरे कलाम में लिखा हुआ है, तूने कहा कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे बरकत दूंगा और अपने बंदे अब्राहम को, अपने बंदे अब्राहम की खातिर मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। आमीन। जब इस कलाम को आपने अपनी अंतड़ियां इस कलाम के साथ भरी होंगी, तो ये कलाम जो है एक टाइम आएगा कि ये फायर की तरह, आग की तरह आपके लिए काम करेगा। तो वो चट्टान जो आपके सामने बांझपन की सूरत में खड़ी है, उसको चकनाचूर होना पड़ेगा, उसे टूटना पड़ेगा और आपके रहन को फलदार होना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उसका आग जो है, उसका कलाम जो है वो आग की मानद और हथौड़े की मानद है। जब अपने मुंह से कन्फेस करते रहेंगे कि खुदावंद तू तन्हा को खानदान बख्शता है, तेरा वादा है बाप इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ कि तू हमारी नस्ल को तारों की मानद बढ़ाएगा, तेरा वादा है मुकद्दम तेरा कलाम कहता है कि तू भांज का गर्भ साधता और उससे बच्चों वाली बनाता और उसके दिल को खुश कर देता है और उसके दिल को तू क्या कर देता है? शादमान कर देता है। और बहुत से लोग कुछ टाइम के लिए, हो सकता है 3 दिन के लिए, तीन माह के लिए, कुछ टाइम के लिए अपने मुंह से वर्ड्स निकालते हैं, लेकिन जब पूरा होने का टाइम होता है, जब पत्थर के टूटने का, जब बांझपन के पत्थर के टूटने का, चट्टान के चकनाचूर होने का, उस बांझपन की जो लकड़ी है उसके झुलसने का, उसके जलने का जब टाइम आता है, तो बहुत से लोग जो है उन वर्ड्स को अपने मुंह से निकालना छोड़ देते हैं। कहते हैं मेरा इतना टाइम हो गया, अभी तक शायद जो है कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ने कहा कि मेरा कलाम जो मुंह से निकल जाता है वो कभी भी खाली वापिस नहीं लो, वो कभी भी असर किए बिना वो वापिस नहीं आता। तो आप सोचो, जो आप अपने मुंह से वर्ड्स निकालते हो खुदावंद के कलाम के बीच में से कि खुदावंद तूने ये कहा है कि तू मेरे लिए ये करेगा, तो क्या वो खाली वापिस आ सकता है? नहीं आ सकता। हालेलुया। एक टाइम था, मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जब फर्स्ट टाइम जो है
खुदावंद जब इब्राहिम के ऊपर ज़ाहिर हुए तो उन्होंने कहा कि इब्राहिम से कि अगले साल जो है वो तेरा बेटा किसके पास होगा, तेरे पास होगा, और तू नाम उसका क्या रखना, इसहाक रखना, इसहाक रखना। तो सारा उस टाइम हंसी थी ना, वो हंसी जो थी वो एक तरह की तंजिया हंसी थी। कौन सी हंसी थी कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी वो हालत नहीं है जो औरतों की, उन औरतों की होती है जो बच्चे पैदा कर सकती हैं। तो फरिश्ते ये जो इस वक्त बयान कर रहे हैं, जो खुदावंद के लोग बयान कर रहे हैं, शायद ये मुझे मजाक कर रहे हैं, और वो तंजिया हंसी कि मैं ऐसा, मुझ में से ऐसा हो नहीं सकता। ये सिर्फ एक सुनने की बात है या सिर्फ कहने की बात है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसने क्या किया, मुकद्दस लिखा है, वो स्माइल की और उसने कुछ अपने मुंह से वर्ड्स भी निकाले। तो वो स्माइल की, लेकिन जो खुदावंद का कलाम जब निकल जाता है तो वो बेतसीर जो है वो वापिस नहीं, वो असर करके दिखाता ही दिखाता है। वो कलाम करके चले गए। मुकद्दस कहती है कि जब टाइम पूरा हुआ और जब खुदा ने सारा को ब्लेस किया तो अगले साल जो है वो इसहाक जो है वो उसके पास था। तो तब उसके मुंह के ऊपर मुस्कुराहट आई होगी कि नहीं आई होगी? आई होगी ना। एक पहली मुस्कुराहट थी जब उससे कहा गया कि खुदावंद तेरी जिंदगी में ये काम करने वाला है, अगले साल तेरी ब्लेसिंग तेरे पास होगी। उससे तंजिया समझा, उसने कहा इतना टाइम हो गया, अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब ये कैसे हो सकता है। वो वाली स्माइल थी। और दूसरी स्माइल कौन सी थी? वो वाली स्माइल जब खुदा ने अपने कलाम को पूरा किया और इसहाक उसे मुहैया किया। आमीन, हालेलुया। आपकी जिंदगी में जब आपको यहाँ पे वर्ड्स दिए जाते हैं, वो आपको लग रहा होता है कि शायद मेरी जिंदगी में ये पूरा नहीं हो सकता, खुदावंद का कलाम तो ये मुझे कह रहा है, हो सकता है आप स्माइल करके आप उसको भूल जाओ। लेकिन मैं खुदावंद का खादम होते हुए ये प्रोफेटिकली वर्ड रिलीज करता हूँ कि बहुत जल्द वो सेकंड स्माइल जो सारा के ऊपर आई थी आपके ऊपर आएगी। आपका इसहाक आपके पास होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मैं कहता हूँ दूसरी स्माइल जो सारा के चेहरे के ऊपर आई थी जब इसहाक उसके पास था, वो सेकंड स्माइल जो है वो आपके ऊपर जल्दी आई है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको क्या करना है, आपको उसके वर्ड के ऊपर यकीन रखना है, उसके कलाम के ऊपर यकीन रखना है कि उसका कलाम कह रहा है कि उसका कलाम जो है वो आग की मानद है, हथौड़े की मानद है, जो चट्टान को चकनाचूर कर देता है। आपको लगे आपकी बीमारी कितनी बड़ी है, वो पत्थर की तरह है, वो चट्टान की तरह है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, डॉक्टर कह रहे हैं कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका इलाज नहीं हो सकता। आप तो सिर्फ अपने घर में जा और अपने लोगों से जाके सिर्फ खिदमत करवा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि दूसरे लोग इस तरह की बातों से परेशान हो सकते हैं। अपनी रिपोर्ट्स को देख के, अपनी स्कैनिंग्स को देख के वो परेशान हो सकते हैं। लेकिन अगर एक रियल क्रिश्चियन हो, सिर्फ नाम का नहीं बल्कि वाकई अपने अमल का और असल में वो मसीही हो, तो जब उससे ये वाली वर्ड्स कहे जाए कि तू अब बचने वाला नहीं है, बल्कि क्या हो चुका है, तेरी रिपोर्ट्स जो है वो फेल हो चुकी हैं, अब तेरी रिपोर्ट्स कहती हैं कि तू इतने टाइम जिएगा। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि खुदावंद ने कहा कि राह पर जिंदगी मैं हूं। एक रियल क्रिश्चियन से जो मर्जी उसके ऊपर वर्ड्स छोड़े जाए, लेकिन फौरन वो अपने नेगेटिव वर्ड्स उसके ऊपर छोड़े गए वो उनको कैंसिल करेगा और वो पॉजिटिव वर्ड्स छोड़ेगा कि खुदा ने कहा है राह पर जिंदगी मैं हूं। डॉक्टर साहब आपकी रिपोर्ट चाहे मेरी जिंदगी का जवाब दे रही है, लेकिन मैं जिंदा खुदावंद यीशु मसीह नासरी को जानता हूं जो जिंदगी मुहैया करता है, जो 4 दिन के मुर्दा नाज़र को जिंदा कर सकता है, जो यायन की बेटी को जिंदा कर सकता है, जो उस बेवा के बेटे को जिंदा करके खड़ा कर सकता है। आमीन, हालेलुया। आज वो पोस्ट चाहे जो मर्जी कह रही हो, लेकिन खुदा मेरे साथ है। मैं उसकी प्रेजेंस में जाऊंगा, मैं उसकी हजूरी में जाऊंगा और वो मेरे जिस्म के जो भी मुर्दा अज़ा हैं, जो रिपोर्ट्स उनको कह रही है कि वो खत्म हो चुके हैं, वो खुदावंद उनको क्या कर देगा, फिर से जिंदा कर देगा। हालेलुया। आप उनको क्या करेंगे, आप जो नेगेटिव वर्ड्स आपके ऊपर छोड़े जा रहे हैं कि तेरे साथ ऐसे होने वाला है, आप उनको अपने पॉजिटिव वर्ड्स के साथ क्या कर दोगे, आप उनको कैंसिल कर दोगे। आमीन। अब एक ही बात है, जहां तो शैतान जो है उसकी टांग आपके ऊपर हो सकती है या आपकी टांग शैतान के ऊपर हो सकती है। या तो आप शैतान को शिकस्त दे सकते हो अपने पॉजिटिव वर्ड्स के साथ, या शैतान आपको जो है आपको शिकस्त दे सकता है आपके ऊपर नेगेटिव वर्ड्स जो मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जब दाऊद जो है वो जाती जूलियत के सामने गया ना, तो जाती जूलियत मुकद्दस में ध्यान से पढ़िएगा, वहां पे लिखा हुआ है कि जाती जूलियत ने क्या किया। जाती जूलियत ने अपने देवताओं का, अपने बुतों का नाम लेकर दाऊद के ऊपर लानत की, दाऊद को कर्ज किया, दाऊद के ऊपर उसने कुछ वर्ड्स जोड़े जो दाऊद के लिए क्या थे, वो नेगेटिव थे।
लेकिन दाऊद में एक रूहानी इंसान था, वो यहोवा पिता को मानने वाला था, वो स्पिरिचुअली चलने वाला था, वो रूहानी तौर पे चलने वाला था। उसे पता चल गया कि जाति जूलियत इस वक्त मेरे ऊपर क्या छोड़ रहा है, नेगेटिव वर्ड्स छोड़ रहा है। अब इनको मैंने अगर कट करना है तो इनको मैंने अपने पॉजिटिव वर्ड्स जो खुदावन यहोवा पिता के कलाम में लिखे हुए हैं, मैंने उनको छोड़ना है। और आज जो है खुदावन खुदा इस जाति जूलियत को क्या कर देगा, मेरे कदमों के नीचे कर देगा। अब सोचो, अब देखना बाइबल मुकद्दस में दाऊद वहां पे खामोश नहीं रहा। जब जाति जूलियत ने कहा कि मैं अपने बाइबल मुकद्दस में क्या है, उसने अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद के ऊपर लानत की, उसके ऊपर नेगेटिव वर्ड्स जोड़े। लेकिन फौरन दाऊद ने क्या कहा, उसे कलाम के मुकद्दस के सामने रखते उससे कहा कि मैं उसी यहोवा पिता का नाम लेकर मैं तेरे सामने आता हूं जिसके जिंदा खुदावन की फौजों की फजीयत तूने की है। आज उसी जिंदा खुदावन का नाम लेकर मैं तेरे सामने आता हूं। तेरे सारे देवताओं के नामों को मैं कैंसिल करता हूं, क्योंकि वही खुदावन खुदा जो है वही वादुल शरीक खुदा है, वही खुदावंदों का खुदावंद है, वही बादशाह का बादशाह है। आज उसी का नाम लेकर मैं तेरे सामने आता हूं और आज वही तेरे सर को तेरे घर से अलग करवा देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कहता क्या तू एक यंग सा लड़का होगे, तू मुझे मारने के लिए आया है? दाऊद कहता है तुझे किसने कहा कि मैं तुझे मारने के लिए आया? उसने कहा वही खुदावन खुदा जिसके जिंदा फौजों की फजीयत, जिसकी इंसल्ट आज तूने की है ना, आज वही क्या करेगा, तुझे मेरे हाथों में कर देगा और बहुत जल्द तेरा सर जो है वो तेरे घर से अलग हो जाए। अगर दाऊद भी उस वक्त खामोश रहता, ठीक है तू जो कुछ मर्जी कही जा, ठीक है मैं अभी तेरी तरफ आ रहा हूं, तो शायद उस वक्त कंडीशंस कुछ और होती। लेकिन वो एक स्पिरिचुअल मैन था, उसने उसके वर्ड्स को, उसके लफ्जों को पहले अपने लफ्जों के साथ काटा और फिर वो अपने दुश्मन की तरफ दौड़ा। जब दौड़ा तो फिर फतह याबी मिली कि नहीं मिली? मिली ना। तो मैं खुदा का खादम होते हुए आपको फिर से कहता हूं कि वो सारे नेगेटिव वर्ड्स जो आपके ऊपर छोड़े गए हैं, आज से वो कैंसिल है यीशु मसीह नासरी के नाम से। मैं कहा हर वो जादूगर जिसने आपके ऊपर जादू को लेकर वर्ड छोड़े हुए हैं, आपके ऊपर बुरे अल्फाज छोड़े हुए हैं, आज वो कैंसिल है यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, हालेलुया। मैं खुदा का खादम होते हुए आपके ऊपर पॉजिटिव वर्ड छोड़ता हूं कि आज के बाद आप अपनी जिंदगी में से ब्लेसिंग्स को देखेंगे, आप तंदुरुस्ती को देखेंगे, आप कामयाबी को देखेंगे, आप बरकत को देखेंगे। आमीन, हालेलुया। मैं सारे नेगेटिव वर्ड्स को आज कैंसिल करता हूं जो आपके ऊपर किसी जादूगर ने, किसी बाबे ने, किसी भी पीर फकीर ने छोड़े हैं। मैं खुदावन का खादम होते क्योंकि मेरा ये ईमान है कि मेरी ताकत जो है वो हर तरह के जादू टूने की ताकत से ज्यादा है। मेरी ताकत जो है वो हर तरह के जादूगर की ताकत से ज्यादा है। आमीन, हालेलुया। और उसी का ख्याल अपने ऊपर लेते हुए आपके ऊपर जो भी नेगेटिव वर्ड्स छोड़े गए हैं उन सबको मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं कैंसिल करता हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सबके एक खुदावंद जो भी वर्ड्स मेरे ऊपर छोड़े गए हैं, जो नेगेटिव हैं, जो मेरी बरकतों में रुकावट है, आज मैं यहोवा पिता तुझे अपने सामने रखते हुए तेरी जिंदा हजूरी में बैठकर मैं इस बात का इकरार करता और उन सब लफ्जों को आज मैं कैंसिल करता हूं। Be cancelled in the mighty name of the Jesus Christ. Be cancelled in the mighty name of the Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Congratulations. मैंने कहा कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपके ऊपर जो भी कर्सेस छोड़े गए थे, आपके ऊपर जो नेगेटिव वर्ड्स छोड़े गए थे, आज खुदावन खुदा ने अपने कलाम को नाज़िल करके अपने कलाम को आपके मेरे वसीला से आपके ऊपर बोलकर उन सारे वर्ड्स को कैंसिल कर दिया है। आमीन। अब आपके ऊपर ये बनता है कि आप उनको किस तरह से मेंटेन रखते हो, क्या आप उनको बनाए रखते हो या यहाँ से बाहर जाकर अगर कोई बुरी रवश करने का मौका मिला, अगर आपने किया तो ये वर्ड्स आपके लिए नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अगर अभी तक हमें चर्चिज में आते हुए 3 साल 4 साल 5 साल तक जितना भी टाइम हो गया है और अभी तक हमने उस यहोवा पिता के नाम का, यीशु मसीह नासरी के नाम का, उसके कलाम के मुताबिक अभी तक हमने बपतिस्मा नहीं लिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी कलाम आप समझते हो कि आपके लिए है, शायद वो आपके लिए नहीं है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अगर तू खुदावंद की बादशाह में दाखिल होना चाहता है, उसके वर्ड्स को अपने ऊपर रिसीव करना चाहता है, तो तेरा नए सिरे से पैदा होना क्या है, वो जरूर है। तेरा आग और पानी से, पानी और रूह के वसीला से जो है वो तेरा पैदा होना क्या है, वो जरूरी है। पानी का बपतिस्मा और उसके बाद क्या, खुदावंद का रूह। आमीन, हालेलुया। मैं आपको सच बोल रहा हूं, जैसे मैं यहाँ पे आया था आज, मैंने, आपको लगे या न लगे, मैंने खुदावंद की प्रेजेंस को महसूस किया था। आमीन, हालेलुया।
کیونکہ جب آپ پرستش کر رہے تھے، جب آپ خداوند کی تعریف کر رہے تھے تو آپ نے اس کے مسا کو محسوس کیا تھا. ایون کہ ساز و آواز زیادہ نہیں تھا، لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنے کو لوگ یہاں پہ بیٹھ کے ساز و آواز بجا رہے ہیں. ہلیلویا. اس لیے ہم کوئر کی اور اس بچے کی جو ساز بجا رہا تھا ان سب کے لیے ہم خداوند کی تعریف کریں گے. ہلیلویا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میرا کلام جو ہے وہ آگ کی مانند بلکہ ہتھوڑے کی مانند ہے، جو کسی بھی چٹان کو کیا کر دیتا ہے؟ وہ چکنا چور کر دیتا ہے. دھوپ کے سامنے کون سی چٹان آ کے کھڑی ہوئی تھی؟ جاتی جرت کھڑا ہوا تھا نا، پھر چکنا چور ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ صرف کس کی وجہ سے؟ اس کلام کی وجہ سے جو ہتھوڑے کی مانند ڈھک جا کے اس کے اوپر لگا. اور آپ سوچو، ایک گیلی مٹی تھی اور وہ پتھر گیلی مٹی کا تھا، اور وہ جب اس کے اوپر لگا، آج کسی کو چکنی مٹی جو ایسے مارے نا تو وہ ایسے کھل جائے گی اور اسے کوئی بھی افیکٹ نہیں ہوگا. لیکن بائبل مقدس کہتے ہیں وہ اس طرح سے اسے لگا کہ وہ زمین کے اوپر گر گیا. ایکچولی وہ پتھر نہیں لگا تھا اسے، وہ چکنی مٹی کا پتھر نہیں لگا تھا، بلکہ وہ ورڈز، وہ خداوند کا کلام جو ہتھوڑے کی مانند لگتا ہے اور کسی بھی چٹان کو چکنا چور کر دیتا ہے، وہ ورڈز جو اس نے اپنے منہ سے نکالے تھے وہ ڈھک بھی جا کر کس کو لگے تھے؟ وہ جاتی جولیت کو لگے تھے، وہ شیطان کو لگے تھے اور وہ سیدھا نیچے گر گیا. اسی آپ کا شیطان چاہے جتنا مرضی بڑا ہو، آپ کا دشمن چاہے جتنا مرضی بڑا ہو، آپ کی بیماری چاہے جتنی مرضی بڑی ہو، لیکن جب آپ نے اپنے انتری اس کے کلام کے ساتھ بھری ہوگی، آپ ان کو نکالیں گے تو آپ کے دشمن کو گرنا پڑے گا، آپ کی بیماری کو گرنا پڑے گا. آمین. ہلیلویا. ہلیلویا. پھر چاہے بیماری جتنی مرضی بڑی ہو، اس میں جو پیناڈول کی گولی ہے وہ بھی پھر کام کر جاتی ہے جب خداوند کا کلام ساتھ ہو. آمین. ہلیلویا. لیکن جب اس کا کلام ساتھ نہ ہو تو پھر چاہے جتنی مرضی مہنگی میڈیسن یوز کی جائے تو پھر ان کا بھی افیکٹ نہیں ہوتا. اسے کہتے ہیں کہ دعائی بھی تبھی کام کرتی ہے جب خداوند ساتھ ہوتا ہے. آمین. ہلیلویا. کیونکہ خداوند کا کلام جو ہے وہ کس کی مانند؟ آگ کی مانند بلکہ ہتھوڑے کی مانند ہے، جو کسی بھی چٹان کو کیا کر دیتا ہے؟ وہ چکنا چور کر دیتا ہے. کتنا گریٹ ورڈ جو ہے آج خداوند نے ہمیں دیا ہے. میں آپ کو سچ بول رہا ہوں، جب میں یہاں پہ آیا تھا تو میں پوچھ رہا تھا خداوند سے کہ خداوند ہمیں آج کون سا کلام کرنا چاہیے. تو ایک ورس تھی، میں نے بائبل مقدس کو کھولا اور ورس میرے سامنے آئی اور میں نے کہا آج اسی میں سے لیں گے. لیکن جو آگے نیکسٹ 29 ورس تھی اس کو پڑھنا تھا، اسی پہ کلام تھا. لیکن آگے ورسز جو ہیں ان کو میں آپ کو تفصیلاً بیان کروں گا کہ کس طرح سے آپ خداوند کے کلام کو سمجھیں اور اس کے کلام سے کیا کریں؟ آپ برکت پائیں. آمین. ہلیلویا. ہلیلویا. اپنے ساتھ والے سے کہیں کہ خداوند کا کلام اگر تمہیں اپنی انتریوں میں بھرا ہوا ہے تو تو اسے استعمال کر کے کسی بھی چٹان کو، چاہے وہ بیماری کی ہو، چاہے وہ قرض کی ہو، چاہے وہ کسی بھی لعنت کی ہو، چاہے وہ کسی بھی جنریشنل قرض کی ہو، تو اسے چکنا چور کر سکتا ہے. کیونکہ خداوند کا کلام جو ہے وہ آگ کی مانند ہے، وہ ہتھوڑے کی مانند ہے، جو کسی بھی چٹان کو وہ چکنا چور کر سکتا ہے. آمین. ہلیلویا. خداوند کی تعریف کریں گے اس کی پریزنس کے لیے جو میں محسوس کر رہا ہوں. تھینک یو جیسس، تھینک یو فادر، تھینک یو ہالی اسپرٹ. آمین. ہلیلویا. تو آگے لکھا ہوا ہے خداوند کا کلام کس کی مانند ہے؟ آگ کی مانند ہے، ہتھوڑے کی مانند ہے. آپ کے پاس جو بھی بلیسنگ نہیں ہے، آپ نے اس کے کلام کو لینا، اگر انتریاں بھری ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ نے کون سا ورڈ جو ہے اس کو منہ سے نکالتے رہنا ہے، پریئر کرتے رہنا ہے. کبھی بھی بے دل نہیں ہونا، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا بے دل نہ ہو، کیونکہ کیا ہے؟ میں تیرے ساتھ ہوں. اپنا بھروسہ، اپنا توکل کس کے اوپر رکھ؟ میرے اوپر رکھ. اور جن کا توکل، جن کا بھروسہ اس کے اوپر ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں شرمندہ نہیں ہو سکتے. آمین. ہلیلویا. اور 30 آیت میں لکھا ہوا اس لیے دیکھ میں ان نبیوں کا مخالف ہوں. خداوند فرماتا ہے جو ایک دوسرے سے میری باتیں چراتے ہیں، دیکھ میں ان نبیوں کا مخالف ہوں. خداوند فرماتا ہے جو اپنی زبان کو استعمال کرتے اور کہتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے. خداوند فرماتا ہے دیکھ میں ان کا مخالف ہوں جو جھوٹے خوابوں کو نبوت کہتے اور بیان کرتے ہیں اور اپنی جھوٹی باتوں سے اور لاف زنی سے میرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. لیکن میں نے نہ ان کو بھیجا نہ حکم دیا، اس لیے ان لوگوں کو ان سے ہرگز فائدہ نہ ہوگا. کون فرماتا ہے؟ خداوند فرماتا ہے. اگر آج آپ کو، میں سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کو خداوند کے ساتھ چلتے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک اگر آپ کو
उस चर्च में जाते हुए, उस निगहबान को फॉलो करते हुए, अगर आज तक आपके बच्चों ने प्रेयर करना नहीं सीखी, आपके बच्चों ने बाइबल पढ़ना नहीं सीखी, तो खुदावंद का कलाम कह रहा है कि ऐसे लोगों से मेरे लोगों को कोई भी फायदा ना होगा, क्योंकि उनको मैंने खड़ा नहीं किया बल्कि वो अपने आप खड़े हो गए। और जिनको मैंने खड़ा किया है, लोगों को डेफिनेटली उनसे क्या होगा, उनसे फायदा होगा। तो ये आपको हम सबको देखना है कि क्या अगर खुदावंद के साथ पहले मैं चलता था मुझे कितना फायदा था। हाँ, कोई फायदा नहीं था, लेकिन अब जब मैंने चलना शुरू किया तो मुझे कितना फायदा हुआ। इसका मतलब है कि कौन सा, आप उसने कहा कि रूहों को पहचानने वाले बनो। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पौधा जो है वो किसकी तरफ से लगाया गया। क्या कोई अपने आप ही खड़ा हो गया है या खुदावंद ने उसको खड़ा किया है? क्योंकि खुदावंद का कलाम कह रहा है कि जिसको मैंने खड़ा किया है उससे डेफिनेटली तुम्हें क्या होगा, तुम्हें फायदा होगा। लेकिन जिससे मैंने खड़ा नहीं किया, जो झूठी नबूवत करता है, अपने मुंह से गलत वर्ड्स निकालता है, लोगों को गुमराह करता है, इधर उधर की बातें करके, लाफजनी की बातें करके लोगों को अपने पीछे लगाने के लिए वो किसी तरह का भी लालच दे सकता है, तो खुदावंद कहते हैं वो मैंने खड़ा उसको नहीं किया और मेरे लोगों को उससे कोई भी फायदा नहीं होगा। और वाकई मैं आपको सच बोल रहा हूं कि आज तक अगर हमें बाइबल, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं, अगर मुझे बाइबल पढ़नी नहीं आती थी, अगर मुझे प्रेयर करनी नहीं आती थी, अगर मुझे किसी तरह से खुदावंद के कलाम को वैसे समझना नहीं आता था जैसे समझना चाहिए, तो इसका मतलब है जो कोई हमें सिखाता था, जिसको हम फॉलो करते थे, शायद वो खुदावंद की तरफ से नहीं था। लेकिन अब जिसको हमने फॉलो करना शुरू किया है, मेरा 100% बल्कि 101% ईमान है कि उसे खुदावंद ने खड़ा किया है लोगों को ब्लेस करने के लिए, लोगों को बरकत देने के लिए, और उसी खुदावंद ने हमें भी खड़ा किया है अपने लोगों को ब्लेस करने के लिए। आमीन, हालेलुया। खुदावंद ने एक सिंपल सी बात बता दी है कि जो अपने आप खड़े हो जाते हैं उनसे लोगों को कोई भी फायदा नहीं होगा। फिर उस वर्ष को पढ़ते हैं 33 को खुदावंद फरमाता है, देख मैं उनका मुखालिफ हूँ जो झूठे ख्वाबों को नबूवत कहते हैं, बयान करते हैं और अपनी झूठी बातों से और लाफजनी से मेरे लोगों को गुमराह करते हैं। लेकिन मैंने ना उनको भेजा ना हुक्म दिया, इसलिए उन लोगों को उनसे हरगिज फायदा ना होगा, खुदावंद फरमाता है। अगर आपको कहीं से, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, किसी भी चर्च में जाके आपको कुछ सीखने को मिला है, आपको प्रेयर करनी आई है, आपको बाइबल मुकद्दस पढ़नी आई है, आपको खुदावंद के साथ चलना, उसके भेदों को समझना आपको आ गया है, जैसे खुदा के कलाम को आप पहले जानते थे, नहीं जानते थे, आपको आपने समझ लिया है, तो इसका मतलब है वो वाला पौधा जो है वो खुदावंद की तरफ से लगाया गया है। लेकिन अगर अभी भी आप मिशनों के चक्कर में फंस के, आपको 20-20 साल हो गए आपके साथ चलते हुए और आपके बच्चों को प्रेयर करनी नहीं आती, आपके बच्चों को बाइबल मुकद्दस पढ़ना नहीं आती, तो वो सिर्फ एक तरह के सर्टिफिकेट्स हैं जो वो लोग अपने हाथों में लेकर चल फिर रहे हैं। एक्चुअली में वो खुदावंद की तरफ से पौधे लगाए गए नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं किसी का मुखालिफ नहीं हूं, हम सबसे प्यार करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार जो है हम उसके जिंदा खुदावंद के कलाम से करते हैं। आमीन, और जो कुछ वो ये कहता है हम उसी के मुताबिक चलते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपने रूम को परख लेना है, आपने चेक कर लेना है। इसके साथ हमें चलते हुए इतना टाइम हुआ, आज तक जो है हमें कोई भी फायदा नहीं हुआ। फायदा सिर्फ ये रुपए पैसे बिजनेस का नहीं, उसमें जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, आपकी जो रूहानी तरक्की है, अगर तो आपको उसका फायदा हुआ है तो डेफिनेटली वो पौधा जो है वो यहोवा पिता की तरफ से लगाया गया और उसी ने उसको खड़ा किया है। और जो कोई फिर उसको रद्द करेगा, उसकी मुखालफत करेगा, खुदावंद जो है वो अपने टाइम के ऊपर जो है वो उसका हिसाब भी लेगा और उससे उसकी सजा भी मिलेगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, खुदावंद कहता है कि मेरे लोगों को, जो लोग खुद से खड़े हो गए हैं, उनसे उसको रत्ती बराबर भी फायदा नहीं होगा। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? इसलिए इन लोगों को उनसे हरगिज फायदा ना होगा। ये कौन फरमाता है? ये खुदावंद फरमाता है। अखीर जो है उसने जंग करने के लिए जाना था। ये सलातीन की किताब में आप पढ़ लीजिएगा, पहला सलातीन। उसने जंग करने के लिए जाना था, उसने 400 नबियों को बुलाया और कहा कि क्या मैं जंग करने के लिए जाऊं? बाइबल मुकद्दस कहती है, वो नबी कहते हैं हाँ ठीक है, तू जंग करने के लिए जा, तू जीत के वापिस आएगा। तो बाइबल मुकद्दस में क्या, यूसुफ ने कहा कि क्या यहाँ पे कोई खुदावंद का प्रॉफिट है जो खुदावंद की तरफ से खड़ा किया गया है? तो ये कहता है हाँ मैं जानता हूँ, वो मेका नबी है, लेकिन वो हमेशा जो भी बात करता है वो हमेशा मेरे खिलाफ होती है, क्योंकि खुदावंद के लोग जो हैं उनकी बातें हमेशा सच्ची होती हैं और हमेशा जो है वो लोगों को बुरी लगती हैं और वो खुदावंद की प्रेजेंस से भाग जाते हैं। और इसी मैं कल सुन रहा था, एक पास्टर जी कह रहे थे कि लोगों की गलत सोच, लोगों की गंदी सोच, लोगों की नेगेटिव सोच, बुरी सोच और पांव की मोच जो है वो कभी भी इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती।
इसलिए अपनी सोच को आपने बेस्ट रखना है अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। आमीन, हालेलुया। तो मिका नबी कहते हैं हाँ मैं आज तो गया हूं लेकिन जो खुदावंद कहेगा मैं वही कहूंगा। तो वहां पे प्रॉफिट है, कहते हैं 400 नबियों ने ये कहा है कि अख ये बादशाह जो है वो जंग जीत के वापिस आएगा। अब तूने भी उनकी तरफ देख के यही कह देना। कहता है मैं उनकी तरफ देख के क्यों कहूं, जो कुछ खुदावंद कहेंगे मैं वही कहूंगा। तो उस बाइबल मुकद्दस कहती है मिका ने उसे आगाह किया अगर तू इस जंग में गया तो तू वहां से मर के वापिस आएगा। कहती अभी अखीब को इस बात के बुरा लगा, उसे पकड़ा और मिका नबी को उसने कहां पे डाल दिया, उसने जेल में डाल दिया। तो खुदावन के प्रॉफिट ने कहा कि अगर तू उस जंग में से जिंदा वापस आ जाए तो खुदावन ने कभी मुझसे बात नहीं की थी। ये तेरे 400 नबी एक साइड पे खड़े हैं और मैं एक साइड पे खड़ा हूं, ये कह रहे हैं तू जा और मैं कह रहा हूं कि ना जा। अब तो अगर जाएगा तू मर के वापिस आएगा। मुकद्दस कहती है जब अखीब जंग लड़ने के लिए गया तो वहां पे वो मर के वापिस आया। इसलिए वो लोग जो लोगों को खुश करने के लिए उनकी तरफदारी करके उनको प्रीच करते हैं कि कहीं कलीसिया नाराज ना हो जाए, कहीं मेरी कलीसिया में से कोई मेंबर भाग ना जाए, उसे मीठी मीठी बातें सुनाते हैं और कभी भी कलाम मुकद्दस के बाद जो मुताबिक जो कड़वी बातें जिससे लाइफ चेंज होती है जब उनको छुपा के रखते हैं तो खुदा कहते हैं मैं क्या करूंगा, मैं उनसे इसका हिसाब लूंगा क्योंकि वो मेरी तरफ से खड़े नहीं किए गए, वो अपने आप खड़े हो गए। वो 400 नबी अपने आप अखीब की तरफ से खड़े किए गए थे लेकिन मिका नबी जो था वो खुदावन की तरफ से खड़ा किया गया था। आमीन, हालेलुया। और इसीलिए जो खुदावन के लोग होते हैं और जो अपनी तरफ से खड़े हुए होते हैं उनमें आपको साफ फर्क नजर आ जाता है। लेकिन जब आप उसके कलाम को समझेंगे, उसको अपनी अंतरियों में बढ़ेंगे, उसके कलाम के मुताबिक चलेंगे तो आज खुदा का कलाम सिर्फ आपको यही सिखा रहा है कि मेरा कलाम आग की मानद बल्कि हथौड़े की मानद है। खुदावंद फरमाता है जो किसी भी चट्टान को क्या कर सकता है, चकनाचूर कर सकता है। आपके सामने जितनी मर्जी बड़ी कोई चट्टान क्यों ना हो, आपकी मुश्किल हो सकती है, आपकी बीमारी हो सकती है, आपका बांझपन हो सकता है, आपका किराए का घर हो सकता है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके बच्चे नशे में हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको वर्ड का खुदावंद के कलाम का इस्तेमाल करना आ गया तो वो चट्टान देखना किस तरह से आपके सामने चकनाचूर होती है। उसमें कुछ टाइम लग सकता है क्योंकि गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम, गॉड वेज आर द बेस्ट वेज। तो हमें उसी के मुताबिक चलना है, उसी में अड़े रहना है, खड़े रहना है ताकि हम क्या कर सकें, हम खुदावंद के कलाम को पूरा कर सकें। अपनी अंतरियां जब भरी होगी उसको अपने मुंह से निकालेंगे तो कोई भी चट्टान जो है वो आपके सामने टिक नहीं सकती। आज के कलाम के वसीले से खुदा आप सबको ब्लेस करे। अगर आपने ब्लेसिंग पाई तो ऊंची आवाज में बोलो आमीन। कितनों को कलाम की समझ लगी है? सच्ची बताइएगा। अगर लगी है तो आपकी तारीफ बताइए कि वाकई आज आपने खुदा की प्रेजेंस को महसूस करते हैं, कलाम को खुदा हासिल किया है। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरे मीठे कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी। आज का कलाम जो हमारी जिंदगियों में बोया गया खुदावंद वो 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 का 100 गुना फल लेकर आए मसीह के नाम में। मिसेस आसमान इनके साथ मिलकर हम इसे प्रेयर करेंगे। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। कदूस कदूस मेहरबान जिंदा हमारे बाप लश्करों के खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं पाक खुदावंद आज तेरे कलाम के लिए जो पाक खुदावंद हथौड़े की मानिंद है, जो आग की मानिंद है, जो हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है। तेरा कलाम जो हमारी जिंदगी के अंधेरों को रोशन करता है, जो हमारे जिस्म के मुर्दा अज़ा को जिंदा करता है, जो पाक खुदावंद हमारे मुर्दा बच्चों को जिंदा करता है, जो पाक खुदावंद खुदा कोड़ियों को पाक और साफ करता है। तेरा कलाम जो पाक खुदावंद खुदा बापसमानी हम सबके लिए आज तेरे बंदा ने खुदावंद रूह कुद्दस की रहनुमाई से, तेरी गाइडलाइन से खुदावंद तेरी भीड़ों तक पहुंचाया है। आज का कलाम हम सबकी जिंदगियों में पाक खुदावंद 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल पाए। ऐ खुदावंद आज का कलाम हमारी जिंदगी में जितनी भी पाक खुदावंद बीमारी की, कमजोरी की, बांझपन की, बेरोजगारी की, कर्ज की चट्टाने हैं, आज तेरे कलाम का हथौड़ा हम ईमान के साथ खुदावंद उन चट्टानों पर पाक खुदावंद लगाते हैं और उन चट्टानों को अपनी जिंदगी में अपनी आंखों के सामने खुदावंद चिकना और चूर करते हैं और पाक खुदावंद खुदा तेरे नाम से गवाही के लिए
खड़े किए जाते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो, पाक खुदावंद तेरा शुक्र हो इस चर्च के लिए, पाक खुदा इस मिनिस्ट्री के लिए। ऐ पाक खुदावंद इसके वसीले से मैं और ये तेरे लोग पाक खुदावंद रोज तेरा कलाम सीख रहे हैं और पाक खुदावंद खुदा बाप पानी तुझ में भर रहे हैं। पाक खुदा इस चर्च को, इस मिनिस्ट्री को कसरत से बरकत दे। अपने खादम को खुदावंद तू और ज्यादा आके शोला की तरह भड़का, तेरा खादम खुदावंद पूरी दुनिया में आके शोला की तरह भड़के, तेरा कलाम खुदावंद खुदा लोगों की जिंदगियों में सीखा बोता रहे, ताकि खुदावंद जिस तरह हम तुझ में भर रहे हैं, तेरा कलाम सीख रहे हैं और पाक खुदावंद खुदा शैतान पर गलबा पा रहे हैं, अपनी कमजोरियों पर जोर पा रहे हैं, इसी तरह बहुत से लोग इस चर्च, इस मिनिस्ट्री के वसीला से पाक खुदावंद खुदा तेरी कुर्बत में आए और पाक खुदावंद शैतान को शर्मिंदा करें। आज के कलाम के वसीला से हम सब पाक खुदावंद खुदा 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना बरकत पाए और 100% इस कलाम पर अमल करें। मसीह के नाम से आमीन।